अगर टाइम बचा तो। तो सबसे बेसिक सर्चिंग एल्गोरिदम जो हम सबको पता है वो तो कौन सी सर्चिंग एल्गोरिदम है बताओ? लीनियर एंड बाइनरी। लीनियर, हाँ, एक तो लीनियर सर्च है जो कि बिल्कुल सबको बाइनरी पता है। सर्च। हाँ, और एक बाइनरी। लीनियर सर्च सबको पता है कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसको पूरा का पूरा ट्रेवर्स करो शुरू से लेके एंड तक, और जहां भी तुमको डेटा मिल जाए वहीं की वहीं उसको रिटर्न कर दो। सबसे सिंपल होती है और इसकी एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है OM। हम चाहते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और वो कम करने की क्या सोच रहे हैं हम कि अच्छा, so we want this complexity, we want to reduce this complexity, and the main focus is that while we are traversing or while we are searching in any data structure, regardless of like if it is storing elements in contiguous fashion or it is a continuous data structure, linear data structure or non-linear data structure, our focus is that we have to reduce the total number of hits. Yeah, or we can say the total number of comparisons. What I mean by comparison is that I'll compare with this element, this element, this element, and up till I'll find the correct element I want to, like I need. So the major focus is that how to reduce this number of comparisons, because in linear search we are literally comparing with every element. So the first algorithm we are going to study is binary search. So what is the constraint of a binary search algorithm? जब हम मिड में से ढूंढना स्टार्ट करते हैं एलिमेंट, हाँ, but like does it have any prerequisite? It has सॉर्टेड। that. हाँ, शॉर्टेड होना चाहिए। So whatever our element, whatever the data structure, whatever the storage we have, the elements must be in the sorted manner. So once element are in a sorted manner, what we find is, for example, you are searching in a dictionary, okay? So if you want to search tomato, okay? So suppose randomly you opened page 50, and right now I am assuming that what I'm assuming is that dictionary has 26, a total of 26 pages. One alphabet has only one page. For example, there is only one page that contains all the words of A. And then the page number 2 will contain all the words of B. So these are our assumptions right now for this example. So suppose we want to search for tomato. Can anyone help me the number of, like, what is the rank of T in the alphabet? Please, 20. So, for example, we have 26 pages, and we don't know where we will find the page, and we randomly search for example, we randomly opened a 12th page. We already know that like tomato will be at 20th page, and we obviously don't know that what will be the 20th page. Suppose there is no index, like suppose there, like, you randomly got a hit and you opened a page 12. So by opening a page 12, you know that all the previous page of this 12 there, we can't find tomato.
So you reduced your search space. For example, this is the book and you got here, and suppose this is the element we want to search. So you, like, your subconscious mind just deleted this search space. You won't be searching previous of this 12th page. You will always be opening the book now from the 12th page as the first page, and now you will be randomly searching, randomly try to open the page 20 here. Are you getting what I am trying to portray here? So the point is that we, in the search also, we don't know what element we are gonna be hitting. We just randomly hit that element and check that if it is the correct element or not. But what we want is that when we are comparing any element, or when we are landing in at any particular element, we can get any data out of this. At least key, if we should move ahead in the right direction or if we should move ahead in the left direction. In the dictionary example, if we are landing at the 12th page, we can get this information that now we won't be traveling in the left direction. We will only be trying to search our page in the right direction. Like if I'll be opening only all the pages after 12, right? So this is the concept behind the binary search. So what binary search says is, second, just huh. So what binary search says that if we have an array like this and the array is sorted 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and we want to search for 60. So what I'll do is, instead of going to any random page, why not to make a rule that we will always be moving in the mid element. We always be going to the mid element. That way it will reduce the, for example, our element is on the mid only. That way it will be own complexity. Example, if the element is on the in on the right direction, on the, like the probability of having an the our target element on the right and on the left of mid is equal. Suppose I will choose this element as the first element I am gonna hit. The probability of going to the left and going to the right change, no. So we can't be computing the complexity of this. Like what is the time complexity? So to generalize or to uh, अरे यार, हाँ. So to generalize or basically for optimizing, we make a rule that we will always be hitting the mid element. So what is the total number of element here? 7. And the mid element would be the first, basically it is L plus R by 2, but we will be using L plus R minus L by 2. Why we are doing this? Because suppose the L and R are very high numbers, and maybe their addition will be somewhat a big number that won't be enough to, like, that would be out of range of int. So for that, to reduce the runtime errors, we use this instead of this L plus R minus L by 2. So this is basically same, 2L plus R minus L by 2 and ऐसे. ठीक है. So the midpoint will be 0 plus 7 by 2. That would be 3. So what is the 3 element here? It would not be 7, it would be 6. Give me a second, someone wants to join. R would be 6, right? Because R is the most right, or like the last element. So we are doing index based, so it would be 6. Still the same answer, but we were doing wrong previously. So we will first be hitting 40. Like, forget about the algorithm. When you will reach 40 and you know the array is sorted, what you will do? Will you be going to the left or to the right if we want to search for 60? Right. Right. Right, obviously. So what we will do is we will completely delete. We will completely delete this search space, and we will, and now our search space is this only. We have almost reduced our search space to half by just checking the data of our first hit.
So that is like binary search is this much efficient. We are completely reducing our search space by half by a single comparison. Now, after this, our left index would be 3 and right index would be still 6. Now, if we are going to compute the midpoint, it would be L plus R minus L by 2. It would be 3 plus 3 by 2, that is 4. These are all integer based, so that means that 3 by 2 would also be 1, it's not 1.5, because indexes are always integer based, so we will be storing them in an int only. So we will reach to the fourth element. Okay, so when we will hit at fourth element, again we will see that 50 is still less than 60, so we need to go to the right. So this space and this space, basically it will look like that it won't divide it in the half, but this side it has one element and this side it has two elements. And obviously as like the number of elements apart from this 50 are odd, so there would be like not the equal division, so that's why we are still reducing our search space by half. We'll again travel to the right, and again the L would be 4, R would be 6, and midpoint this time would be 4 plus 2 minus 2 by 2, it would be 5. This time we will be hitting the right element, we will just return 60. So is the algorithm clear? Okay. Yes, Didi. So अब इसी चीज को अब हम विल राइटिंग दिस इन अ कोड. सो कोड क्या कहता है? अच्छा, there are two ways of doing this, either by recursion or by a simple iterative solution. So first हम recursion वाली अप्रोच चेक करेंगे. Recursion से कैसे हम बाइनरी सर्च करेंगे? So what recursion says is, suppose there is, हम एक फंक्शन बनाएंगे obviously, binary search int L. It will take two arguments, the starting element of an array or the ending element of the array. Like it will basically indicate our search space. So it would be int R, the array. It would be either an array or a vector. Suppose it is a vector. What else does it need? The target element we want to search. What would this function return? An int. Either it will return the index or it will return true or false. So अभी के लिए we will assume that it is returning an index. अगर true or false करेगा तो यहाँ पे we will be putting int slash p. ठीक है. So first we will check कि suppose there is an array 10, 20, 30 only, and we are looking for 40. So when we look for 40, we'll first hit 20. We know that we have to go right. But then we will hit 30. We know that we have to go right. There is no element in the right. So we have reached to a point where L will become greater than R. Like R, as per my algorithm, L will be at this point. We have to start from right. We have to start to the right of the element, and R will remain here only. So there will be a point where L will greater than R, so that the lower index is greater than R. Is like, if we reach this point, does the array contain any element? Suppose yeah. So सबसे पहले first we will check that if L is greater than R, return false या फिर -1 indicates कि we didn't get any element. Now
It means that array has some elements and we still have some search space left. If L is greater than not, if L is not greater than R, so इसका मतलब है कि या तो if L is equals to R or if L is greater than R. In this case, it means that our search space contains only one element, and in this case, our search space contain many elements. So basically we have a search space so we can perform our computations. So first what we needed to do is whenever I get in search space, I'll find the mid element. Mid element is L plus R minus L by 2. First we will check ki if our mid element is equals to target, we will return mid or true. If our mid element is not equal to target, that means this is a false hit, but it is giving us some data. So how we will utilize this data? If our array of mid is greater than target, what this means that in this array, our array of mid is here and target is somewhat here. So we are on the right. So we need to move to the left. So what I'll do is I'll again call the same function. This time the left element, like the left from where we need to start, is same, because if I am let's do it again. एंड हमारा मिड जो होगा वो हमारा लास्ट पॉइंट बन जाएगा, देन बस वही तो हाँ. चेंज आएगा इसमें. हाँ. So suppose we are here, our mid is here, and initially L was here, R was here, and we know the target element is somewhat here, and we know that we only need to move to the left now. So what we will do is we will just what we will do is we will just move our right pointer to here. We are just reducing our search space to this way. So for that we need to move our right to the mid. Now mid is not the element, so instead of mid we are doing this to mid minus 1. So now the left would remain the same. For the right, we will be doing mid minus 1. Why mid minus 1? Because mid is already not the right element. So why to include mid again? And the same array and the same target. And whatever this function will return, we मैम will वो return. जिस वन एक बार बताइएगा प्लीज. क्या? हमने मिड -1 क्यों करा है? Like if why, suppose इतना तो समझ आना कि हम mid करेंगे. हाँ हाँ, यस मैम. But mid we have already compared. That mid is not equal to target. That means mid is Yes, not the yes. right answer. So we will do to mid minus 1. Yes, ma'am. We'll reduce our space to like one more element. Else array of mid, if array of mid is less than target, same situation. What it means is that instead of here, our element is somewhat here. And now what we need to do is we need to update our L to here, and R will remain at the same position. And now a search space would be this, because our target element is somewhat here. So for moving this L to this position, it would be mid, but again mid is not the correct solution. We will go to mid plus 1. So return binary search को BS लिख देते हैं अभी के लिए, mid plus 1 R array target. ये क्लियर है? यस मैम. यस मैम. अगर इसमें कोई डाउट हो तो फिर हम डिस्कस करते हैं, वरना हम इसी वाले सॉल्यूशन की इटरेटिव अप्रोच करेंगे. मैम आफ्टर द क्लास आप ये भेज दीजिएगा प्लीज. रुको मैं अभी शेयर कर देती हूँ, उसको मैं भूल जाती हूँ.
एक बार चेक कर लेना कि अगर मैं कुछ अपडेट कर रही हूँ तो वो भी आ रहा है वहां पर कि नहीं. Okay, so now we'll be doing the iterative approach. So iterative approach क्या, iterative approach का main focus क्या होगा कि now we won't call the function again and again. We will use either a for loop or a while loop. But in this case, a while loop makes more sense because we are comparing two pointers. Basically, we'll be comparing, for example, this is our array. So we'll be comparing two pointers if this is left and this is right. So whenever if L is less than or equal to right, we will enter in the loop. Otherwise, we will not enter in the loop. Agar if L is greater than R, what basically it means that we have no element present. So basic condition तो यही होगी that while L is less than equal to R, L is 0, R is n minus 1, where n is the number of elements, right? So we will again compute the mid. I'll चलो ये वाला बाद में पूछते हैं. L plus R minus L by 2. Again we will check that if R mid is equals to target element, we will return either true or the midpoint, like whatever this index is. Else, if our ARR mid is greater than target, what it means is that we are currently on the right of target. So we need to need to move our search space to the left. So by what it means is that we'll reducing this R as mid minus 1. Else एक ही केस बचा है कि mid is less than target. So इस केस में L is equals to mid plus 1. एक सेकेंड और ये हो गया पूरा. हाँ, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे माइनस वी डिडंट फाइंड एनी एलिमेंट. सो ये वाली अप्रोच समझ आई, लाइक आई ये वाली अप्रोच समझ के नहीं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what do you think, which approach is better, iterative or recursive? Ma'am, iterative seems a bit easier. Iterative. Yeah, it seems little easier, correct. So first we'll analyze the time and space complexity of both the algorithms. ठीक है. So The space complexity will be more in recursive method. second यार. हाँ. So see, time complexity क्या होगी, क्या लगता है? Time complexity basically we are reducing our search space to half every time. So the time complexity would be log of n. We won't be going deep into this because वो सब recursion में आता है कि हम time complexity compute कैसे करते हैं. Basically एक tree बनता है, फिर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ call हो रहा है और हर point पे कितने children हैं, फिर इस तरह करके निकालते हैं. But अभी के लिए ऐसे याद रखो कि if our search space और if I सपोज I है और I को जैसे I प्लस प्लस होता है ना, अगर हम I को इंक्रीज करके I मल्टीप्लाई 2 या फिर I को इक्वल करके I डिवाइड बाय 2 करें लूप के अंदर, सभी चीजों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log of n होती है. सो बोथ द सॉल्यूशंस में हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log of n होगी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रहा है तुमको कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? Big O of 1. हम्म Big O of 1.
इटरेटिव में तो ओ ऑफ वन होगा। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है मुझे। बिग ऑफ वन दीदी, बिग ऑफ वन। हाँ, ये सीम अपीयर हो रहा है कि जो रिकर्शन है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन है, but in recursion there are function calls, this function call, this function call. For example, th- this function is waiting for the output of, suppose this is the complete array, and we know that we have to go to the right only, so so we called this function. But this function also we got a false hit and we are moving again to the right. So now this function is waiting for the output of this function. Similarly, this function must be waiting for the output of some other function. So all these function calls are stored in a stack. सो बेसिकली एक इंटरनल स्टैक बनता है, रिकर्शन में हमेशा ही बनता है एक इंटरनल स्टैक, और दैट वे द कॉम्प्लेक्स, कितने नंबर ऑफ इंटरनल स्टैक्स बनेंगे, जितने नंबर ऑफ हिट्स होंगे उतने होंगे कितने, लॉग ऑफ एन. सो हम बेसिकली जितने टाइम हमारा फंक्शन कॉल होता जाएगा उतनी बार एक टेम्पररी वो बनता जाएगा ना स्टैक पे। हाँ, स्टैक के अंदर बेसिकली इंटरनल स्टैक के अंदर वो फंक्शन एंटर होता जाएगा, ऐसे ऐसे अलग अलग स्टैक्स नहीं बनेंगे, बट एक ही स्टैक, इंटरनल स्टैक के अंदर हम वो स्टोर करते जाएंगे. और जैसे इस फंक्शन को जरूरत होगी इसके आउटपुट की, जैसे ये रन होगा ये अपना आउटपुट इसको देगा, ये रन होगा ये अपना आउटपुट इसको देगा, ये रन होगा निकल जाएगा और ये स्टैक एम्प्टी हो जाएगा. समझ रहे हो? यस Yes, मैम। yes. सो बेसिकली वो स्टैक कितने नंबर ऑफ कॉल्स होंगे, लॉग ऑफ एन. तो कितनी स्पेस चाहिए हमको, लॉग ऑफ एन. सो अगर वैसे देखें यूजर्स ने कितना स्पेस लिया वो ओ ऑफ वन होगा, पर इंटरनली लॉग ऑफ एन स्पेस लग रहा है. तो बेसिकली हम कहते हैं कि स्पेस इट डिपेंड्स, कि मतलब तुम एग्जैक्टली नहीं बोल सकती लॉग ऑफ एन है क्योंकि रिकर्शन यूज हो रहा है और इंटरनल यूज हो रहा है, तो ये एग्जैक्टली नहीं बोलते हैं. बट अगर हम एफिशिएंसी कंप्यूट करें तो इटरेटिव अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और रिकर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस ऑफ लॉग ऑफ एन है. तो दैट वे हम कह सकते हैं कि रिकर्शन वाली अप्रोच इज लिटिल लेस एफिशिएंट देन दिस. बट स्टिल यू विल सी दैट, सी क्या, इफ व्हेन यू विल बी मूविंग अहेड विद योर कोडिंग और जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, यू विल सी दैट यू विल बी यूजिंग द रिकर्शन approach way more than the iterative approach. I have never used this iterative approach. Like after once I practiced, I got to know there is an approach. After practicing, I found that like it will look a little difficult, but after some time it will appear a less, like more easier than the approach, the iterative one. But efficiency wise, iterative is better. हेलो दीदी। कोई डाउट है इस वाले चीज में? हेलो दीदी। हाँ. Actually, if we can look the recursions process that it is storing all that function in a stack, then it can never be a constant time, no? Never. Means in worst case, it can be never be in a constant time. Is it possible that if we can make recursion constant? Constant. What do you mean by constant? Means when the space complexity became constant. कांस्टेंट तो नहीं हो पाएगा, रिकर्शन में तो डायनामिक ही रहेगा, जितने नंबर ऑफ कॉल्स होंगी उतने स्टैक के अंदर एंट्रीज आएंगी, और बस वही, मतलब बेसिकली हम वर्स्ट केस में उसको लॉग ऑफ एन कर देते हैं. सपोज हमें पहले हिट में मिल गया तो एक भी मतलब रिकर्शन कॉल नहीं होगा, तो ओवन स्पेस होगा. बट स्टिल हम वर्स्ट केस का लेके चलते हैं ना बिग ऑफ नोटेशन में. यही क्वेश्चन था या कोई और क्वेश्चन था? दीदी बस यही था कि एक्चुअली हम लोग तो कभी मतलब वो तो वर्स्ट केस में कभी भी रिकर्शन में तो हम लॉग कांस्टेंट तो बना ही नहीं पाएंगे कभी भी. हाँ. वही पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या पॉसिबल है कोई मेथड से या किसी के तरीके से कि हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कभी पॉसिबली कांस्टेंट बना पाए? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि ये वाली जो स्पेस है वो हमारे एक्सेस में है भी नहीं, वो इंटरनली ही अपना स्पेस बनाकर उसके अंदर स्टोर कर रहा है. तो रिकर्शन अगर हम फंक्शन कॉल करेंगे तो स्टैक तो मतलब एक वो हो गई एक्सेस. और कुछ डाउट नहीं था, यही बस कंफर्म कर रहा था बस. ठीक है.
So there's one more question on the binary search. The question is we have to find the first occurrence of the element. What I mean by first occurrence is suppose that element is 10. मतलब रिपीट हो रहा होगा एलिमेंट पूरे हाँ. एरे में. हाँ. हाँ, इस तरह कुछ है. And we want to find the first occurrence of element 30. So what do you think what we will do or what we will change in our algorithm? हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे. Break? लाइक एज सून एज वी हमको 30 एलिमेंट मिलते देन हमारा प्रोग्राम फिनिश. As soon as हमको क्या मिल गया? हमारा एलिमेंट 30 मिला देन हम ब्रेक कर दे बस उसे. सो ब्रेक करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल वे हमारा जो फर्स्ट हिट है वो ये है एंड वी विल 0 1 2 3 सो वी विल रिटर्न 3 0 1. हाँ, बट व्हाट वी एग्जैक्टली द आउटपुट इज 2. समझ रहे हो चीज? यस मैम. तो क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा सोचो कि हम अपनी जो अप्रोच है उसमें बेसिकली करते क्या है और हमें क्या मॉडिफाई करने की जरूरत होगी. जब हम अपना लेफ्ट और राइट अपडेट करते हैं तो हम चेक करेंगे कि मिड प्लस वन या मिड माइनस वन कर रहे हैं तो क्या वो वही एलिमेंट आ रहा है जो मिड पर पहले प्रेजेंट था और क्या उसके वापस लेफ्ट में या राइट में वो एलिमेंट कहाँ तक प्रेजेंट है. हाँ, ये कर सकते हैं हम, बिल्कुल सही अप्रोच है. सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा अरे ये तो काम की चीज है. हाँ, सो बेसिकली कोई और कलर का लेते हैं अपन जिससे समझ आ जाए थोड़ा सा. सपोज हम यहाँ पर आए 10 20 30 30 30 40, ठीक है. और सपोज द फर्स्ट एलिमेंट 8 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 50 भी कर लेते हैं. सो दैट वे जो मिड एलिमेंट होगा 1 2 0 1 2 3 4 5 6, दैट वे जो मिड एलिमेंट होगा वो 3 होगा. तो हम सबसे पहले एलिमेंट ये चेक करेंगे और एज पर दिस एल्गोरिथम एज सून एज इट चेक्स कि we got like the array of mid is equals to target, it will return either mid or true. So suppose इसमें तो हम इंडेक्स निकालना है, it will return mid. So if it will return mid, it will return 3 और ये तो wrong होगा. So what we will do is as soon as we find an element, हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं. Either our mid is equals to 0. What it means that कि जो हमारा एलिमेंट जो हमें मिला है वो एकदम लेफ्ट में. सो इस केस में तो ऑब्वियसली we won't do anything, we will just return this mid because there is no element on the left, it is on the extreme left, right? Second case, right? Hello. यस मैम. हाँ, the second case that would be is कि element is somewhere in the middle and the array of mid minus 1 is not equal to array of mid. It also means that this is the first occurrence, right? For example, we are searching for 20 and we land at 20 only and we check that array of mid minus 1 is not equal to array of mid. That means that 20 is the first element, first occurrence. This mid we got is the first occurrence of element we are gonna search. In all other cases, if array of mid minus 1 is equals to array of mid, इसका मतलब है कि ये हमारी सही occurrence नहीं है. We will move our search space to left.
विल नॉट से दैट विल अगेन चेक दैट कि जब तक पीछे 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 जाके देखेंगे, विल जस्ट मूव आवर सर्च स्पेस टू लेफ्ट ऑफ दैट एलिमेंट। यहाँ पर था, यहाँ पे मान लो 2 अकरेंस है और यहाँ पे था। सपोज यहाँ पे हम लैंड हुए और हमने चेक किया कि भाई यहाँ पे भी है एक एलिमेंट, तो वी वोंट डू एनीथिंग, वी विल जस्ट मूव आवर सर्च स्पेस टू हेयर और नाउ वी आर चेकिंग द एलिमेंट हेयर, बिकॉज ये वाला एलिमेंट हमको मिला तो है पर ये हमारे काम का नहीं है, तो वी विल जस्ट इग्नोर इट, राइट। ठीक है, सो इसकी जो हम लिखेंगे कोड थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होगा पर काफी इजी है। So what we will do is एक सेकेंड, बाकी सारा तो इसमें भी बाइनरी सर्च जैसा ही होगा। सपोज हम bs ले लेते हैं फंक्शन को, int l int r, एरे होगा एक, टारगेट होगा एक, if r l is greater than r, return -1, कुछ बचा ही नहीं है एरे में। if अगर ऐसा नहीं है, दैट मीन्स दैट वी कैन कंप्यूट द मिड एलिमेंट। int mid इज इक्वल्स टू वही फॉर्मूले से, एक बार हमारे पास मिड आ गया, so we won't directly be checking. What we will doing is, if we will be writing the equal to वाली condition at the last. We can write it in the शुरुआत also, but last में लिखने से हमारी थोड़ी condition, मतलब एक आधा if बचेगा। So what I am saying is कि if ARR of mid is greater than x, so what we will do is return, अगर ARR mid greater है इसका मतलब हम थोड़ा राइट में, हमको पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, अपने इसको मिड -1 कर देंगे बाकी सबसे। else if हमारा ARR ऑफ मिड इज लेस देन x, इसका मतलब है कि हम थोड़ा पीछे हैं, हम थोड़ा राइट जाना है, तो हम अपने l को थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो इसका मतलब हमको करना है रिटर्न ऑफ मिड +1 और राइट और ऐसे। ठीक है, अब कौन सी कंडीशन बची है, सिर्फ एक कंडीशन कि हमारा ARR मिड और वो सब बराबर हो गया। अब अगर ये बराबर हो गया है तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि अगर हमारा मिड जो है वो इक्वल है 0 के, मतलब या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर हम ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो हमको रिटर्न करना पड़ेगा, हम रिटर्न कर सकते हैं मिड। एल्स अगर हमारा मिड बराबर है और अगर हमारा मिड बराबर है और ये दोनों कंडीशन सही नहीं है, इसका मतलब है कि जो मिड -1 है वो और मिड बराबर है, तो हम वापस से लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट मतलब कि हम बेसिकली जो है ये मिड -1 वाली ये वाली कंडीशन वापस से लिखेंगे, रिटर्न L मिड -1 और बाकी सबसे। अच्छा, ये वाले दो कंडीशंस है ना, इनको भी हमें इसी ऑर्डर में लिखना है। हम पहले ये वाले नहीं लिख सकते उसके बाद ये नहीं लिख सकते, क्योंकि फर्स्ट इट हैज टू चेक दैट इफ मिड इज इक्वल टू 0, इसको जैसे ही इसको ये ट्रू मिल जाएगा ये आके की चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे और है। अगर और में पहली कंडीशन ट्रू होती है तो वो बाद की चेक ही नहीं करता है। और अगर ये फॉल्स है, इसका मतलब है कि मिड 0 नहीं है, दैट इसका मतलब है कि हम ये वाला जो ये चीज है ना, इसको चलाने के लिए सेफ है। वरना अगर ये 0 होता तो 0 -1 एरे ऑफ -1 आ जाता, तो हम इसको रन टाइम एरर आ जाता ना। तो इसीलिए हमको पहले ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी चेक करने के लिए कि भाई अगर 0 है तो ये कंडीशन चेक ही नहीं होगी, तो कोई सेफ है। और अगर 0 नहीं है तो भी हमारा 0 नहीं है, तो कुछ भी बड़ा होगा तो हमारे लिए चल जाए। समझ आया? ठीक है, तो इसी का जो एक और क्वेश्चन है वो है कि हमें एंड वाली अकरेंस निकाले, मतलब तो लास्ट अकरेंस निकालने किसी भी एलिमेंट की। तो वो वाला क्वेश्चन तुम अपने आप करके देखना, बिल्कुल सेम है इसके जैसे, बस थोड़ा सा उसमें थोड़ी कंडीशन आगे पीछे होंगी, पर कॉन्सेप्ट एकदम सेम। वंस वी गॉट दी फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस, एक और क्वेश्चन होता है कि हमें काउंट निकालना पड़ता है ऑल दी अकरेंस। तो काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
फर्स्ट अकरेंस निकालेंगे, लास्ट अकरेंस निकालेंगे. सपोज फर्स्ट अकरेंस एट 0, लास्ट अकरेंस एट 1. सो व्हाट विल बी डूइंग इज लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1. प्लस 1 क्यों करते हैं, मैं बताती हूँ प्लस 1 क्यों करते हैं. बेसिकली यहाँ पे है पहली अकरेंस. सपोज फर्स्ट जैसे यहाँ पे है, जैसे कुछ भी एक्स एक्स एलिमेंट है और ये हमारा स्टार एलिमेंट एक्स ने मार देंगे. तो यार इसकी इरेजर समेत नहीं दुखी. सपोज ये जो हमें एलिमेंट चाहिए वो एक्स 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 है और ये 0 0 0 0 है. ठीक है, तो हमने फर्स्ट अकरेंस निकाली कि यहाँ पर है, लास्ट अकरेंस निकाली यहाँ पर है. हम सीधा लास्ट माइनस फर्स्ट कर देते हैं. लास्ट माइनस फर्स्ट का क्या मतलब है कि हम बेसिकली इस पूरे में से ये वाला पूरा माइनस कर देते हैं, तो इसमें ये वाला एलिमेंट हट जाए. बेसिकली लास्ट माइनस मतलब फर्स्ट का -1 करेंगे, मतलब इस वाले एलिमेंट से हटाएंगे, तभी हमको लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 ऐसे मिलेगा. हम बेसिकली ऐसे कर रहे हैं f-1. अगर इसको खोलेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1. समझ आया ये? दीदी एक बार फिर से रिपीट कर दो ना. Yes, yes, yes. आंसर बताओ. नहीं आया दीदी, एक बार वापस रिपीट कर दो, वो थोड़ा नेटवर्क में लैक हो गया था. अच्छा मैं बताती हूँ, कुछ बोल रही हूँ. तो सपोज हमारे पास ये कोई एलिमेंट है, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 1 1 1 1 है और यहाँ पे 0 0 0 है. सपोज हमको पता चला 0 1 2 है ना, तो हमें पता चला कि फर्स्ट अकरेंस 0 है और 3 4 5, लास्ट अकरेंस 5 है. तो हम अगर सीधा कर देंगे ना 5 - 2 और हमारा 3 आ जाएगा, तो ये गलत आ रहा है. अभी बता रही हूँ अभी गलत क्यों आ रहा है, उसका रीजन ये है क्योंकि बेसिकली हम अपने 5 वाले में से 2 वाला माइनस कर रहे हैं. 2 वाला है नहीं, ये वाला. अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये वाला एलिमेंट भी चला गया ना, ये भी हट गया पूरा का पूरा. तो इसलिए हम क्या करते हैं, 2 वाला नहीं माइनस करते, हम इससे पीछे वाला एक माइनस करते हैं, यानी हम ये वाला एलिमेंट को माइनस करना है. तो बेसिकली हम 5 में से 2 - 1 माइनस करते हैं, 5 में से 1 माइनस कर रहे हैं यानी 4. तो इसको लिखने के लिए क्या तरीका था, लास्ट में से हम फर्स्ट अकरेंस का एक -1 माइनस कर रहे हैं, जो कि हमें देखने में ऐसा लगता है कि लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1. अब समझ आया? हाँ हाँ दीदी आ गया. तो अब हम क्या करेंगे. अच्छा, एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आप इसमें बाइनरी सर्च ही थोड़ा बहुत यूज हो रही है. इसमें हम क्या करना है, हमको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है. स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का मतलब है कि हमको दिया गया है 16 और हमको बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा. और मान लो 16 तो चलो हमको पता है कि इसका परफेक्ट आता है स्क्वायर रूट, पर सपोज हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं आता, जैसे 15. तो अगर हमें 15 का स्क्वायर रूट निकालना है तो नहीं आएगा परफेक्ट, तो हमें जो भी आंसर आएगा उसका सील लेना है. सील का मतलब क्या होता है, 3.55 तो चलो एक अजीब सा नंबर है, 3.8 को 4 बना देते हैं ऐसा. तो इसमें हम बाइनरी सर्च कहाँ यूज कर सकते हैं. सबसे पहले ना बाइनरी सर्च जब भी सोचो, BS लिखा करूंगा बाइनरी सर्च कब से. बाइनरी सर्च जब भी सोचो तो अपना सर्च स्पेस देखा करो कि तुम्हारा सर्च स्पेस कितना रहेगा, क्योंकि सारा खेल ही यहाँ पे इसका होता है. तो सर्च स्पेस मैक्सिमम क्या रहेगा. सपोज द एलिमेंट इज 1, so the search space would be 0 to 1. Element is 2, so not 2, so element is 4, so the search space would be, तुम्हें ऐसा लगेगा देखने में कि 0 से 2 है क्योंकि आंसर 0 से 2 के बीच में ही आ सकता है, but we won't know. So what we will do is we will be starting from 4 itself, so 0 से 4. अगर हमारा 16 है तो we will be going from 0 to 16 and we'll checking. So what we will do is फर्स्ट 0 16 की चेक करेंगे. 8 है क्या स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर करके देखेंगे, नहीं 8 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा है, इसके पीछे जाना पड़ेगा. अब 0 से 8 हो गया सर्च पे, 0 से 8 का मतलब आ गया 4. अब 4 देखेंगे 4 है क्या स्क्वायर रूट, हाँ, आंसर रिटर्न कर दिया. अब यहाँ पे तुम सोचोगे कि भाई हम 0 16 क्यों कर रहे हैं, हम 0 से 4 मतलब 4 ही क्यों नहीं कर लेते, पर अगर हमें 4 पता होता तो हम ये सब करने की जरूरत क्या पड़ता. समझ रहे हो. सो इसमें सेम होता है, जस्ट L वुड बी 0, R वुड बी दी नंबर जहां पे जिसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है. 0 भी नहीं, 0 तो किसी का स्क्वायर रूट होता है नहीं, 1 से लेंगे हम बेसिकली. सो हम आंसर इनिशियली मानते हैं कि हमारा आंसर -1 है, पर बेसिकली हमको ना मिनिमम आंसर चाहिए कि मान लो अगर कोई भी
किसी भी पॉइंट पे क्या हो गया कि जो हमारा जो स्क्वायर रूट आ भी रहा है ना, जैसे 3 आया हमारा, ठीक है, अब हाँ, Why are we taking for 10? Why are we taking the search space from 0 to 16? नहीं, इट इज नॉट 10, इट इज 16 ओनली. Okay. सो हाँ, सो अभी मैं आगे बताऊंगी इसमें थोड़ा सा कैच क्या है, क्योंकि हमें सील निकालना है वरना तो सेम ही होता. तो इसमें क्या है कि हम चेक करेंगे कि जब तक हमारा सर्च स्पेस बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, इसका मतलब जब तक हमारा लो जो है वो लेस देन इक्वल टू हाई नहीं हो जा रहा है, तब तक हम निकालेंगे मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाय 2, और जो मैंने बताया तुमको लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2 वो वाला करना, ठीक है. और हम निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट. तो इंट एस इज इक्वल्स टू बेसिकली मिड क्रॉस मिड. यहाँ पे एरे ऑफ मिड नहीं हो क्योंकि यही है हमारा एरे, कुछ भी नहीं है. सो मिड क्रॉस मिड. अब यहाँ पे सारा चेक करने का आता है कि इफ एस इज इक्वल्स टू s is equals to r x. X is basically this number. So instead of x, I am writing this number. So basically, if x is equals to this number, so we will just return the s, like return the mid. कि कहाँ पे आया हमारा. We have to return mid, right? We don't have to return this s. ठीक है. और if हमारा जो s है वो छोटा है नम से. What it means is कि suppose 16 के केस में we somehow reach 2, है ना, और 2 का स्क्वायर is 4, so 4 is less than 16. So what we need to do is we need to start from 2, like 2 तो नहीं हो सकता, we need to start from 3. So our search space is now 3 to 16. So that means कि हम इस केस में अपने नहीं, रुको, अगर हमारा स्क्वायर रूट जो है यानी जो भी हमने कंप्यूट किया है अभी वो छोटा आया है हमारे नम्स से. नहीं, ये वाली केस हम बाद में करेंगे. ये वाली केस में 2-3 चीज़ें होंगी. अगर हमारा स्क्वायर रूट है वो बड़ा आया है हमारे नम्स से, यानी कि सपोज हम 5 पर हैं इस वक्त, है ना, और 5 का स्क्वायर इज 25, तो 25 इज ग्रेटर देन 16. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल रिड्यूस श्रिंक आवर सर्च स्पेस. हम अपना सर्च स्पेस 5 से कम कर देंगे. सो व्हाट विल बी डू इज वी विल बी डूइंग इज हम अपना व्हाट हैव वी यूज्ड हाई और लो. हाँ, सो हम अपना हाई को कर देंगे मिड माइनस. एल्स एल्स कौन सी केस बची है जो हमने अभी लिखी थी कि सर्च स्पेस जो हमारा स्क्वायर रूट आया वो नम से छोटा है. सो बेसिकली 2 वाला कि 2 आया, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4. सो इस केस में हम सीधा सा पहले तो ये करेंगे कि अपना सर्च स्पेस को थोड़ा राइट में शिफ्ट करेंगे, तो लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1. पर इस केस में हमको ना टेम्परेरीली आंसर स्टोर करना पड़ेगा. सो टेम्परेरीली आंसर स्टोर करने का क्या मतलब है कि हम अभी के लिए मान लेंगे कि हमारा जो है ना मिड आंसर है. ऐसा क्यों? ऐसा मैं बताती हूँ. क्योंकि बेसिकली वी हैव टू, एक्चुअली मेरे को व्हाट्सएप पे कोई छोड़, बेसिकली वी हैव टू फाइंड द सील, है ना. सो इफ वी गो लाइक अगर हमें 4 नहीं मिल रहा है, या फिर अगर मान लो कोई भी एलिमेंट है जैसे 15 है, 15 के लिए हमको आंसर मोस्ट प्रोबेबली इस केस में 3 चाहिए, क्योंकि 4 तो हो नहीं सकता. वैसे मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए था, पर एज पर द क्वेश्चन 15 के लिए आंसर हमको 4 चाहिए. और मतलब जो भी है ना 16 के लिए 4 चाहिए, और उस 16 के लिए 4 चाहिए, और 9 से लेकर 16 के बीच में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनका आंसर हमको 3 चाहिए. सो जैसे ही हमको थोड़ा भी छोटा आंसर मिलेगा ना, हम उसको टेम्परेरीली स्टोर कर लेंगे कि अगर इफ दिस इज द आंसर फाइन, अगर नहीं है तो हम और भी चेक कर रहे हैं, पर टेम्परेरीली हमने अपना 2 स्टोर कर लिया है कि अगर हम सपोज वी आर लुकिंग फॉर, सपोज हमारा जो सर्च स्पेस, वापस इसको ड्राई रन करके देखेंगे तो ये समझ आएगा. जैसे 0 16 है ना,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के लिए चेक करेंगे। 8 स्क्वायर इज इक्वल 64 नहीं है, तो हम अपना सर्च स्पेस कम करके यहाँ 8 कर देंगे। फिर हम वापस से इन दोनों कलर चेक करेंगे। अब हम 16 नहीं लेते हैं, चलो हम ना 15 लेते हैं, ठीक है। तो 15 के केस में सबसे पहले 7 के लिए चेक करेंगे, क्योंकि 50 0 1 तब भी 8 ही आएगा, क्योंकि 15 प्लस 1/2 8। तो 8 का स्क्वायर तो बड़ा है, तो फिर हम अपना सर्च स्पेस कम करके 8 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे 7 पे कर देंगे। फिर अब हम चेक करेंगे 7 प्लस 1/2 यानी कि 4। 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ये वाला भी 16 भी बड़ा है 15 से, तो हम वापस अपना सर्च स्पेस यहाँ पे ना 3 कर देंगे, है ना। अब हम वापस चेक करेंगे 3 प्लस 1/2 यानी कि 2। अब 2 का स्क्वायर इज लेस देन 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इट इज लेस देन 15। इसका मतलब वी नीड टू गो टू द राइट, ठीक है। पर अभी हम टेम्परेली अपने आंसर में ना 3 स्टोर कर लेंगे, 2 स्टोर कर लेंगे, कि सपोज जो हमारा मतलब अगर कोई भी आंसर नहीं मिला, तो जो सबसे छोटा आंसर है जो कि आना चाहिए था वो 2 है। अभी हम ऐसा मान रहे हैं, पर अभी हम जब आगे जाएंगे तो हम चेक करेंगे कि वो ये आंसर 3 तक भी पहुंच सकता है। ये कैसे, हम अपना जो भी हमारा मिड मिड इस वक्त क्या आया था 2, सो हमने 2 से इसको अपने को 3 पे अपडेट किया। सो 3, अब हमारा लो भी जो 3 बन गया और हाई भी 3 बन गया। सो अब हमारा मिड क्या होगा 3। सो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अभी भी 9 छोटा है 15 से, बट स्टिल हमने क्या किया, हमने क्या कि ना वी नीड टू गो टू द राइट, बट अभी हम टेम्परेली अपना आंसर अपडेट कर देते हैं कि 3 तो, कि अगर कुछ और नहीं मिला तो 3 है हमारा आंसर। तो हमने 2 से इसको 3 बना दिया और वापस से अपना लो अपडेट करके 4 कर दिया, और जो हाई था वो 3 था, तो अभी ये लूप के बाहर आ जाएगा, पर स्टिल वी हैव गॉट द आंसर 3। ये क्यों मिला हमको, क्योंकि हम जो भी मतलब एकदम 4 से पहले का जो सबसे छोटा नंबर है ना, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू ट्रैक दैट नंबर। अगर हमारा 9 से लेके 15 तक में हमारी रेंज है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग अभी लग रहा होगा, पर थोड़ा सा भी समझ आया, मतलब 50-60% भी। दीदी ये 1 क्यों कर दिया हमने बिगनिंग पॉइंट 15 से? कहाँ पर? ये जो हमने एरे इंडेक्सेस किए हैं वो 0 की जगह 1 से चलाया है। हाँ, वो 1 तो हमने इसलिए किया क्योंकि 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, कि कभी भी नहीं होगा, तो कोई लॉजिक नहीं है, तो हमने 1 से स्टार्ट किया। हम 0 से भी कर सकते हैं, कोई ये दिक्कत इंडेक्स ये नंबर्स हैं। नहीं। हाँ, ओके ओके गॉट इट। ये इंडेक्स नहीं है, ये नंबर्स है बेसिकली। ये 16 है ना, तो ये बेसिकली इंडेक्स नहीं है, ये नंबर्स है 1 2 3। हम नंबर्स के साथ देख रहे हैं। ये हमें टेम्परेरी स्टोर करने वाला लॉजिक समझ आया कि हम क्यों कर रहे हैं। हम टेम्परेरी आंसर स्टोर कर रहे हैं मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं, जब तक हमें राइट आंसर नहीं मिल जा रहा है। और अगर हमें कभी राइट आंसर नहीं मिला, मतलब अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो भी हमारे पास कुछ टेम्परेरी चीज होगी। आया है समझ दीदी दीदी आ गया। बाकी लोगों को? मैम अच्छे तरीके से नहीं आया, बट घर अभी और ट्राई करूँगा समझने का आपका रिप्लाई। हाँ, मतलब इसको ना एक बार थोड़ा थॉट देना कि अगर 16 होगा तो तुम्हें 4 मिल ही जाएगा, पर अगर 15 होगा 14 होगा तो वी नीड 3। और वो करेक्ट मतलब करेक्टली मैच तो कोई नहीं होगा, तो उसके लिए हमें जहां भी थोड़ा भी छोटा मिल रहा है वहां पे हम उसको टेम्परेरी स्टोर कर लें कि शायद 2 आंसर हो सकता है। 2 नहीं होगा, मतलब 2 कैन बी आर पोटेंशियल आंसर, बट इफ अगर अगर आगे हमें 2 से कोई चीज बड़ी मिली तो हम वो स्टोर कर देंगे। और हमें 4, अगर हमें कोई ऐसा नंबर मिल गया जिसके लिए परफेक्टली वो सही आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है ही। दीदी पर ये तो फिर फ्लोर फंक्शन हुआ ना, मतलब हम 3 ठीक निकाल है, रहे थे। क्या क्या बोल रहे हो? ताकि हमें इसमें सील निकालना है, मतलब अगर 3.8 है तो वो 4 आना चाहिए। हाँ, वही मैंने भी देखा, मतलब जिस जो मैंने भी आउटपुट देखा ना इस क्वेश्चन का, वो ये है कि 15 का हमें 3 चाहिए। और वही मैं इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई बीच में कि हमको शायद मे बी, एक सेकंड में चेक करती हूँ कि सील में कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली हमको आउटपुट चाहिए क्या, क्योंकि जो आउटपुट इनपुट देख रही हूँ मैं वहाँ पर 15 के लिए 3 निकाल रहे हैं और लिखा क्वेश्चन में सील है।
perfect square यहाँ पे जो नेट पे क्वेश्चन है मुझे सिर्फ ये चेक करा रखा है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसका सील वाला क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से मिलेगा। जीएफजी पे है भेजना फ्लोर मुझे का लिंक। फ्लोर का ये भी क्वेश्चन फ्लोर का ही हो और मुझे लगाओ कि सील का है। इसमें फ्लोर का तो मैं कर रखा है। हो सकता है क्वेश्चन फ्लोर का ही हो और मैंने गलत लिखा हो, क्योंकि जो हम सॉल्व कर रहे हैं जो आउटपुट है वो भी फ्लोर के लिए निकाल रहे हैं हम। अगर हमको सील के लिए निकालना होगा तो हमें कहाँ अपडेट करना होगा? थोड़ा दिमाग लगा अगर सोचो वैसे। वाइल लूप के बाद नहीं, जब इस पोजीशन पे जहाँ हमको पता है कि यहाँ पर हमारा बड़ा आ रहा है और हम पोटेंशियली यहाँ पे बड़े वाला स्टोर कर लेंगे, और अगर फिर हम आगे लूप चला देंगे। अगर हमें किसी पॉइंट पे मतलब इक्वल मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो बड़ा वाला तो हमने स्टोर करा ही रखा है। और हम इतनी बार मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब हम एग्जैक्टली उससे एक ही आगे होंगे या एक ही पीछे होंगे। इस बात की गारंटी तो है ही, क्योंकि ऑब्वियसली सर्च पेज वहीं एंड होगा। समझ रहे हो? तो अगर हमें सील निकालना है तो हमें यहाँ पे अपडेट करना होगा, यहाँ पे अपना टेम्पररी आंसर स्टोर करना होगा, और फ्लोर के लिए तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं। समझ आया ये? नहीं आया? आ गया। लेकिन अगर हम वाइल लूप के बाहर करेंगे, मतलब अगर वाइल लूप के बाहर अपने आंसर को एक इंक्रीमेंट कर देंगे तो भी तो सेम ही बात रहेगी ना। वाइल लूप के बाहर आंसर में प्लस आंसर तो हम ट्रैक रख ही नहीं रहे। देखो आंसर तो अगर हम यहाँ पे कहीं भी ट्रैक नहीं रखेंगे तो आंसर तो रखेंगे। नहीं है। अच्छा, हम रख रहे हैं ट्रैक, बेसिकली आप कह रहे हो। हाँ हाँ, तो तब भी कर सकते हैं हम आंसर प्लस प्लस। इसके बाद एक क्वेश्चन जो मैं ऊपर ऊपर से देखती हूँ, आपको लगाने का टाइम तो निकल गया। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बस क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर उसको तुम अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगाना घर पे, और फिर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे कल। सो द क्वेश्चन ये है कि वी नीड टू सर्च इन अ सॉर्टेड प्लस रोटेटेड एरे। मतलब कोई एरे था 10, 20, 30, 40, 50, 60 है ना। ये सॉर्टेड है पर किसी ने इसको 3 टाइम्स रोटेट कर दिया। 3 टाइम्स रोटेट करने का मतलब है कि हमने इसको 30, 40, 60, 50, 60 और यहाँ पे ना 10, 20 बनाया। तो बेसिकली इतना सॉर्टेड है और इतना सॉर्टेड है। तो यहाँ पे हमको सर्च करना है और बाइनरी सर्च ही यूज कर रहे होंगे यहाँ पे भी हम। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हमको log ऑफ n ही चाहिए सर्चिंग की। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में भी और वैसे ओएस में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। इससे पहले वाला क्वेश्चन शायद थोड़ा कम समझ आया होगा, क्योंकि मैं भी उसमें सील और फ्लोर में कंफ्यूज हो गई थी बीच में। शायद मैंने गलत लिखा होगा कि सील निकालना है, क्योंकि हम जो एल्गोरिथम्स यूज कर रहे हैं और जो आउटपुट चाहिए हमको वो तो फ्लोर का ही आउटपुट है। किसी को कोई डाउट है? मैम वो पिछला वाला क्वेश्चन ही थोड़ा सा रफली समझ आया, मैं कभी उसको क्लास के बाद आई ट्राई करूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में मैं बेसिकली मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से वापस ला देती हूँ कि जैसे हमें 16 का ना स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें पॉइंट क्या है कि बाइनरी सर्च यूज करके हमको ना सर्च स्पेस पता करना है। तो सर्च स्पेस तो बेसिक चीज है कि हम ना 0 या 1 से 16 से 0 से 16 ले लेंगे या 1 से 16 ले लेंगे। 0 इसलिए ले लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली 0 होगा नहीं, क्योंकि 1 से 6 सर्च स्पेस का क्या मतलब है कि इनमें से कोई भी पोटेंशियल आंसर हो सकता है। तो 0 लेने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता पोटेंशियल आंसर।
अब हम इन इस पूरे सर्च स्पेस में हमको वो एलिमेंट ढूंढना है जिसका स्क्वायर हम करेंगे तो वो 16 निकला है। तो 16 या फिर परफेक्ट स्क्वायर में तो बहुत आसान होता है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे कि अब 16 को हम बार बार ले, हम 25 लेंगे इस बार, जिससे कि मिड पॉइंट पे बार बार करके तुम्हें थोड़ा समझ आए। ठीक है, 1 से 25 है हमारा, एल जो है वो 1 है और आर जो है वो 25 है। मिड पॉइंट क्या निकलेगा 13। 13 का स्क्वायर बहुत बड़ा होगा 25 से, सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम अपना सर्च स्पेस क्या कर देंगे, जीरो जीरो नहीं, मेरे को जीरो की आदत पड़ रही है पर जीरो नहीं, 1 से लेके यहाँ पे 25 होगा, 1 से लेके 12 तक। ठीक है, अब 12 और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, कितना आएगा 6। 6 का स्क्वायर 36, मतलब अभी भी ज्यादा है तो हम वापस से कम कर देंगे। अब हम क्या करेंगे 1 से लेके 5, 1 से लेके 5 करेंगे तो अब हमारा क्या आएगा मिड 3, 3 का स्क्वायर 9। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि भाई ये 3 तो है वो छोटा है, मतलब 3 तो नहीं होगा आंसर क्योंकि 9 छोटा है हमारे 16 से, पर हम टेम्परेरीली आंसर में 3 स्टोर कर लेते हैं कि कुछ नहीं मिला। मतलब सपोज हमारा जो आंसर होता है वो 10 ही होता ना, अगर हमें ढूंढना होता है वो 10 ही ढूंढते हैं और हम 3 पर है, तो हम बेसिकली हमको 3 स्टोर करके रखना है। तभी हम क्योंकि अभी हम इसके आगे जब बढ़ेंगे तो सर्च पेज हमारा खत्म हो चुका होगा, क्योंकि अब हम कहीं 4 पर होंगे, मतलब अगर हम 10 सॉल्व कर रहे हो, जब हम 10 के लिए वापस करेंगे तो समझ आ जाएगा तुमको। तो हमने 3 अभी टेम्परेरीली स्टोर किया ना, उसके बाद हम वापस थोड़ा आगे जाएंगे, हम बोलेंगे कि हमारा एल जो है वो 4 हो गया और जो हाई है वो हमारा भी 5 ही है। तो इन दोनों का करके देखो, मिड पॉइंट क्या आएगा 4, अब 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो हमने बोला 16 भी छोटा है 25 से, पर हम 4 स्टोर कर लेते हैं, मे बी 4 हमारा पोटेंशियल आंसर हो। फिर हमने हाई एल को बढ़ा दिया 5 से और मिड हमारा इस वक्त हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर इज 25, तो हमारा ट्रू आ गया, तो हमने सीधा 5 रिटर्न करा दिया। ठीक है, अब हम वही उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा सपोज 10 होता है। ठीक है, तो 10 के केस में हम क्या करते हैं 1 से लेके 10 तक जा रहे हैं, 10 से जा रहे हैं मतलब एल इज इक्वल टू 1 और जो हाई है वो हमारा है 10। ठीक है, और जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 बहुत बड़ा है तो हमारा ये तो नहीं होगा, तो हमने हाई को बना दिया 4, 4 प्लस 1 5। एक सेकंड रुको, मेरे कॉल आ रही है। हाँ, तो अभी मिड हमारा 5 बन गया, अभी 5, अच्छा नहीं, अब हमारा मिड 4 था ना, 4 प्लस 1 5, तो हमारा जो मिड होगा वो 2 होगा। 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो हमें पता है 4 इज लेस देन हमारा 10, पर हम टेम्परेरीली आंसर में ना 2 स्टोर कर लेंगे कि मे बी 2 आंसर हमारा हो सकता है। फिर अब हमें पता है कि हमें राइट में जाना, तो यहाँ पे हो गया 2, सो 2 प्लस 4 बाय 2 इज 3। सो अब हम 3 का स्क्वायर देखेंगे कि 3 का स्क्वायर इज 9 और 9 इज लेस देन 10। सो 9 अब लेस देन 10 है, पर फिर भी हम टेम्परेरीली आंसर में 3 स्टोर कर लेंगे कि 3 मे बी आर पोटेंशियल आंसर, अगर हमें अब नहीं मिला आगे कहीं तो। फिर हमें पता चल राइट में जाना है तो यहाँ पे हम 3 करेंगे। सो 3 प्लस 4 बाय 2 इज 3 प्लस 4 बाय 4 इज 2 इज अगेन 3। 3 का स्क्वायर किया 9, 9 लेस देन 10, फिर 3 वापस 3 से अपडेट होगा, तो अब हमारा क्या होगा 9 लेस देन 10, हाँ 9 लेस देन 10। अब हम वापस से इसको अपडेट करके 4 करेंगे, 4 प्लस 4 बाय थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है पर ऐसे ही चलेगा ये, 4 प्लस 4 बाय 2 इज 4, तो 4 पता चला, 4 का स्क्वायर इक्वल 16, 16 इज ग्रेटर देन 10। इसका मतलब ये हमारा सही आंसर नहीं है, तो हम हाई को वापस से अपना 3 कर देंगे। अब लो इज ग्रेटर देन हाई, इसका मतलब ये हम बाहर आ गए, मतलब ये गलत हो गया, सर्च स्पेस हमारा एंड हो गया। तो इस केस में हमारा जो आंसर क्या निकलेगा 3, और हमें चाहिए था 3। तो बेसिकली हमको अपना पोटेंशियल, जैसे भी हमको कोई छोटा वाला मिलेगा ना, हम उसको स्टोर करके रख लेंगे कि क्या पता वो आंसर हो। अगर वो बाद में हमको अपना सही आंसर या परफेक्ट स्क्वायर मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो हमने अपना जो सबसे
वो है वो तो स्टोर करके रखा हुआ ही है। तो हमारा फाइनल आंसर टेम्परेरी आंसर जो हमने स्टोर करा वो भी हो सकता है मतलब। हाँ, बहुत केसेस में वो होगा, क्योंकि 0 से लेके 25 तक अगर हमें कोई भी एलिमेंट्स देंगे तो उसमें केवल 0, इसमें 1, 4, 9 और 16 और 25, ये इन सारे एलिमेंट्स के बट एक अलावा क्वेश्चन है, इन सारे एलिमेंट्स के अलावा कोई भी और एलिमेंट होगा तो उस केस में जो आंसर हमारा फाइनल होगा वो टेम्परेरी आंसर ही होगा, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर तो केवल इन्हीं केस में जनरेट हो पाएगा ना, समझ रहे हो? यस मैम। मैम एक डाउट और है, हाँ, बट ये हमारा मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम होगा, क्योंकि इसमें तो हम एक टेम्परेरी आंसर भी स्टोर करो और हम तभी भी एक फाइनल आंसर के लिए वी आर लुकिंग फॉर अ फाइनल आंसर। बेसिकली टेम्परेरी तो हमारा एक ही सिंगल वेरिएबल है, तो वो स्पेस फॉर नहीं तो तो ओवन है, स्पेस तो ओवन ही होगा हमारा, कॉम्प्लेक्सिटी तो चेंज नहीं होगी इसमें। नंबर ऑफ कॉल्स ऑब्वियसली ज्यादा हो सकता है, पर स्टिल इट विल परफॉर्म बेटर देन आर जो बेसिक लीनियर सर्च है ना उससे। यस ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? कोई बाकी डाउट या ऐसा कुछ तुमको पता है? तुमको अभी वो वाला क्वेश्चन कल सॉल्व करके लेकर आना है सबको, जिसमें कि हमें लास्ट अकरेंस निकालनी है किसी भी एलिमेंट की। ये क्वेश्चन देख कर लेकर आना, जिसको नहीं आएगा समझ हम करेंगे। वैसे तो बिल्कुल सेम है ये फर्स्ट अकरेंस से, पर फिर भी ट्राई करना घर पर और रन करके देखना एक्चुअली। ये वो लूप वाला क्वेश्चन लिंक लिस्ट वाला। हाँ, वो डिटेक्ट लूप वाला वो हम कल कर ही करेंगे, अभी तो टाइम हो गया। रिमूव लूप वाला उसमें बेसिकली हम ना क्योंकि उसमें ना बात ये है कि एल्गोरिथम तो बहुत छोटी है उसमें, पर उसके पीछे कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा पड़ा है, तो उसमें मुझे लगता है कि एक क्लास निकल जाएगी समझाने में कि वो एल्गोरिथम सही कैसे है। बाकी छोटी सी एल्गोरिथम है, उसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, उसमें हम एक बार लूप डिटेक्ट होने के बाद थोड़ी सी अपने पॉइंटर्स की पोजीशन चेंज करते हैं, फिर लूप ट्राई करते हैं रन करने का, और इससे हमें पता चल जाती है पोजीशन। बेसिकली हम यहाँ पर हैं और यहाँ से यहाँ है, तो हमें बेसिकली इस पॉइंट की पोजीशन निकालनी है ना, तो हम क्या करते हैं, बस एक बार हम थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करके इस पॉइंट को पता लगा लेते हैं, सीधी एल्गोरिथम है, और इसका नेक्स्ट जो है वो नल कर देते हैं। एल्गोरिथम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर उसके पीछे क्यों है ये एल्गोरिथम, ये वर्क कैसे कर रही है, सही कैसे है, उसको समझाने में टाइम लगेगा, तो अभी नहीं, वो या तो कल करेंगे या फिर किसी दिन हमको थोड़ा टाइम होगा तब करेंगे। देखिए एक चीज और, डीएसए के लिए एक बुक रेफरेंस कौन सी बेस्ट होगी? बुक ना 2 बुक्स होती हैं, जैसे मैंने जो खरीदी थी, पर मैंने पढ़ी तो उनमें से एक ही है थोड़ी सही तरह से। पहले वाली मैंने खरीदी थी और मेरे हॉस्टल में आई थी वो, और फिर मैं उसको हॉस्टल में छोड़ के घर चली गई थी कोविड में, तो फिर मैंने उसको कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया। पर जो एक अच्छी बुक मानी जाती है वो होती है नरसिम्हा की C++, और अगर तुम स्टार्ट में फिर उसमें अच्छे क्वेश्चंस पाए जाते हैं। और लेकिन अगर कोडिंग के पॉइंट से देखे जाए तो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू वाली जो बुक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इवन जो स्टडी मटेरियल्स देते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन से पहले कंपनी, उनमें भी वो मेंशन्ड होता है कि ये वाली पढ़ो। नरसिम्हा के अलावा कौन सा नाम बताया आपने? वो दूसरी है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, मैं लिंक भेज देती हूँ। क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू गेल ने लिखी है। ये ना जावा में है बुक वैसे तो, पर कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ सबको समझ आता है क्योंकि एल्गोरिथम्स होती है ना। मेरे लिए तो बेनिफिशियल है अगर जावा में। ये ग्रीन कलर का बुक ना, कब क्या ग्रीन कलर का बुक ना, ग्रीन किंग द इंटरव्यू बुक। अच्छा, 1-on-1 वाले इंटरव्यूज। नहीं, वो जो बुक बोला ना, क्रैकिंग द इंटरव्यू वाला। हाँ हाँ, उसका ग्रीन कवर है। हाँ, ग्रीन कवर है उसका। आखिर में इसका, हाँ यही है ग्रीन कलर की, काफी अच्छी है, पर इसको हाँ, रेगुलरली मैं पढ़ना। अमेज़न में देखा था। काफी मतलब अच्छी तो है काफी, इसमें बाकी चीजें भी हैं कि इंटरव्यू को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चंस अप्रोच कैसे करने हैं, ये सब भी।
मेरे को तो अच्छी लगी थी, पर मेरे को ना ऐसे ज़्यादा मन नहीं करता था इसको पढ़ने का, क्योंकि ऑब्वियसली बुक तो बुक होती है। पर है ये अच्छी, मतलब अगर तुम 1 घंटा पे रोज़ पढ़ लो तो ठीक है। 2-3 क्वेश्चन सोच लिया करो बस, कि 2-3 क्वेश्चंस के एल्गोरिदम्स निकालनी है। दीदी वो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू तो, हेलो, हाँ? वो कौन सी बुक, नरसिम्हा कारुवंशी से या फिर वो क्रैकिंग नहीं, वाली से? नरसिम्हा वाली बुक मैंने एक्चुअली पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैंने उसको खरीदा था, पर मैं उसको ऑफिस में भी लाई थी, मतलब घर वो कॉलेज में। नरसिम्हा कारुमांची डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, ये मैंने पढ़ी नहीं है, पर सब लोग बोलते हैं कि काफ़ी अच्छी है, तो तुम ट्राई कर सकते हो। पर मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड वाली क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बेसिकली। वो तो थोड़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन बेस्ड है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाने के लिए है। ये थोड़ा बिगिनर्स के लिए ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से, ये वाली नरसिम्हा वाली बुक। और अगर तुम्हें थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज है तो वो ये जो सीरीज है ना कोडिंग इंटरव्यू वाली बुक, ये चल जाएगी। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो फिर सेशन एंड करते हैं। बाय बाय। बाय बाय दीदी। बाय बाय दीदी, गुड नाइट।